is this endotracheal. No abbreviation. अभी से याद रखिए, नो एब्रिविएशन, ठीक है ना, पूरा एंडोट्रैकियल ट्यूब, ठीक है, एंडोट्रैकियल ट्यूब, ठीक है. Yes, sir. Endotracheal tube is basically what is it? It is a type of definitive airway. ठीक है. अगला सवाल होगा, what is the other type of definitive airway? Pick it up. कौन सी है tracheostomy? ये this is a tracheostomy tube and this is the Endotracheal tube. कैमरे लेके एक दूसरे की गर्दनों में ये endotracheal tube, this is the endotracheal tube and this is the Tracheostomy tube. ठीक है. और both of these are Definitive airway. because they have got a very special part and that is called the cup, which blocks the entry of other anything foreign to the airway. ठीक है. So that is why they are called definitive airway. ठीक है. This is what endotracheal tube is. Tracheostomy tube. ठीक हो गया. Yes, sir. And the indications are, what are the indications? This is not a surgical airway and this is a surgical airway. Okay, if we call this is a surgical airway as well. Okay, this is not a surgical airway. Okay, this you can pass by a Laryngoscope. But this you cannot pass by a laryngoscope. You have to create a hole in the trachea and then only then you can pass. Yes, sir. Okay, so that's why it is called a surgical airway. What is the other surgical airway? Cricothyroidotomy. Cricothyroidotomy. That is the other surgical airway. ठीक है. अच्छा. No, इसके जो है ना वो basically जो most important thing is how you put it. It has got parts, those are not important. Okay, it has got identification, that is not important. Okay, the only thing important is how you are going to pass. Okay, so if you have to pass it, you have to have a completely sedated or an unconscious patient. You cannot pass it on a conscious patient because a conscious patient can protect his airway by gag and cough. Okay, so you will have a very important piece of instrument in your hand and that is called laryngoscope. Okay, what is it? I'll tell you later on. Laryngoscope, you will hold it in your left hand. Always remember your non-dominant hand. If you are dominant on the other side, even then there is only one way to put a laryngoscope and that is you have to hold it on the left hand. And from the right hand, you will pass this tube, endotracheal tube. So first of all, this is a Macintosh laryngoscope. This is called a Macintosh. It is a curved laryngoscope. There is another one, and that has a straight blade. Because there are two types of blades. One is curved, and the other one is straight. The curved one is called Macintosh. The straight one, I remember that name. This is Macintosh. So, whenever you are using a curved blade, you will place this blade behind the epiglottis, and that portion is called vallecula. Yes, sir. So you will place the edge of this laryngoscope at the vallecula, and you will hold, you will lift the this epiglottis in unison. Okay, not like this. You will hold it like this. ठीक है. अभी आए हुए ना तो कोशिश करो अगर कोई आप एंडोट्रैकियल इंटिबेशन देख लो एक दफा. ठीक है, आपको याद रहेगी. You don't have to study for that.
can only remember if you see a person passing. So vallecula you will ऐसे आपको नजर आएगा, ठीक है, लाइक दिस, लाइक दिस, ठीक है ना, ये आपको इस तरह नजर आएगा, नीचे vallecula नजर आएगा, ठीक है. एंड व्हेन you will lift this vallecula up, तो नीचे से आपको inverted V में vocal cord नजर आएगा, ठीक है. इन्वर्टेड V में इन्वर्टेड V ये होती है, ठीक है ना. आप इसको ऐसे उठाएंगे और नीचे से आपको वोकल कॉर्ड भी ऐसे खुले हुए इन्वर्टेड V शेप, ठीक है. तो यू विल लिफ्ट दिस epiglottis and you will see the vocal cord, ठीक है. ये है by for using a curved blade. But if you have been given a straight blade, then you will take the epiglottis with it, ठीक है. अब epiglottis यूं जाएगी ऊपर, ठीक है. Yes. You will lift the epiglottis as well, ठीक है. आप पहले तो आप epiglottis के पीछे जो vallecula है वहाँ पे आप रख रहे हो, ठीक है. अब आप उसको epiglottis को भी साथ ही लिफ्ट करोगे, ठीक है ना. और लिफ्ट करोगे तो आपको नीचे वो सामने रेंजियल इनलेट नजर आ जाएगा. एंड देन यू विल पास योर अंडरटेकिंग, ठीक हो गया, समझ आ गई. Yes, sir. और अच्छा, इसके अंदर आप ये देखो, इसके अंदर ये एक एज बना हुआ है, ठीक है. दिस इज अ कर्व एंड दिस इज एन एज, द कर्व एंड दिस इज एन एज, ठीक है. सो दिस एज इज दैट व्हेन यू आर पासिंग द ट्यूब you can completely see its tip. You can see that its tip is passing beyond those vocal cords. Only then you can be sure that you have passed it in a correct way. ठीक है. अगर आपको नहीं ये नजर आता, if you are unable to pass, you can never be sure that this is you have passed it in correct way. ठीक है. तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड सर करवा के देखते हैं, करवा के देखते हैं सर. On the patient? नो, पकड़ा देंगे, ये काम पकड़ोगे, ये काम यू हैव टू. दिस इज लेफ्ट, दिस इज राइट, ठीक है. vallecula लिफ्ट इन यूनिसॉन एंड पास बियॉन्ड द वोकल कॉर्ड, ठीक है. 4 पॉइंट है, याद रखो. लेफ्ट राइट लिफ्ट पास, ठीक हो गया. Yes, sir. और सिर्फ यही डिफरेंस है. इसमें आपने उसके पीछे रखना है एपिग्लॉटिस के, उसमें आपने एपिग्लॉटिस के साथ रखना, ठीक है. गॉट इट. इसके जो है ना, नो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वहाँ पे दिया जाता है. दिस इज द कनेक्टर, दिस इज द कनेक्टर, ठीक है. by which you will connect it to a बात तो लगने दो. अच्छा, so this is a connector, ठीक है. This one is the connector and you will connect it right here, ठीक. You will connect it right here, ठीक है. Yes, sir. This connector will be connected. This is called Ambu bag. ठीक है जी. और इसको आपने यूं कनेक्ट करना, किसी और चीजों से अम्बू बैग कनेक्ट नहीं होता, सिर्फ इससे होता है. और ट्यूब, ठीक है. इन 2 चीजों से अम्बू बैग कनेक्ट होता है, ठीक है. और तीसरी चीज क्या होती है जिससे अम्बू बैग कनेक्ट होता है? मास नहीं आया, ठीक है. ये सर, दिस इज द लास्ट रिजॉर्ट टू पास. सर कहते हैं कि वी मे हैव टू रिससिटेट सम ऑफ आवर कैंडिडेट. वो रिससिटेट इसी तरह करते हैं, पकड़ा देते हैं, ये लो पकड़ो, इसको लगाओ, ठीक है. इसके साथ वो कहते हैं अब ये पड़ी हैं सारी की सारी चीज़ें, मुझे बताओ ये इसमें किस चीज़ के साथ लग सकती है. How you are going to attach?
ठीक है, टेल मी व्हाट आर द पीस ऑफ इक्विपमेंट बाय विच यू कैन अटैच. ठीक है, 1 2 एंड अ मास्क. फेस मास्क. ठीक है, वेंचुरी मास्क जिसे कहते हैं, और फेस मास्क. ठीक है, उसके साथ ये 3 चीज़ों के साथ लग सकता है और किसी चीज़ के साथ अटैच करने की कोशिश भी नहीं करनी. Yes, sir. ठीक है, ये बार बार बताता हूँ, हर दफ़ा कोई शहजादा उठ के, कोई शहजादी उठ के जो है ना, वो किसी और चीज़ के साथ इसको जोड़ने की कोशिश करे. ठीक है, ये ज़हन में रख लेना, दिस इज़ द लास्ट रिजॉर्ट टू पास. अगर कोई इसमें ये ना कर सका, मुझे उसके साथ कोई हमदर्दी, सर को भी कोई हमदर्दी. ठीक है, दिस इज द लास्ट थिंग एंड द फर्स्ट थिंग वी वांट यू टू लर्न. हाउ टू पास a laryngoscope, how to pass a laryngoscope, how to pass an endotracheal, and how to attach a connector. ठीक है, ये चीज़ कभी नहीं भूल. ठीक है ना सर, आखिरी हद तक जाते हैं पास कराने के लिए, और आखिरी जो उत्तर होता है ना, वो यही होता है. ठीक है, ये आपका है, ये करते तो पास. हाँ, कर दिया तो पास. इससे पहले कुछ और कर दिया तो फिर से. अच्छा, समझ आ गई. Yes, sir. ठीक है, तो याद रखना है, ये कनेक्टर है, इसके साथ अटैच करना है, इसके साथ नहीं. इसमें ये कप है, दिस इज द कप. ठीक है, दिस इज द कप. इसमें दिस इज द कप. दिस इज द कप. ठीक है, so this is the cup. ठीक है जी, नीचे एक कप है जिसे बलून की तरह का है. When you will inflate it by the port. दिखाओ पोर्ट ना दिखाओ. This is the port. This is the port. Port. Airport. P-O-R-T. ठीक है, port. So this is the port of which you will inflate the cup. ठीक है, 7 cc air will be injected through it. ठीक है, और जो आपका यहाँ पे एक बलून है, एक बलून यहाँ पे है, ये बलून फूल जाएगा, it will get inflated, this balloon. ठीक है, and it will be in front of you. Yes. And this balloon will be inflated In the trachea. If it is not inflated, then it is not inflated. Yes. ठीक है, तो आपने इसको इन्फ्लेट करना है विद 7 cc, और ये ऑटोमेटिकली इन्फ्लेट हो जाएगा. ठीक है ना, ये आपको बता. ठीक है, अब इसके ऊपर कुछ मार्किंग लिखी हुई है, दिस इज कॉल्ड 6.5. ठीक है, 6.5 यहाँ पे लिखा हुआ है, 6.5. और ये कुछ मार्किंग्स हैं, 18, 20, 22, 24, 26, 28. Yes. ठीक है, so this marking is single use ID is internal diameter. ठीक है, this is universal. ठीक है, all over the world. 6.5 ID means that it has got a 6.5 mm diameter of internal diameter. ठीक है, तो ये है 6.5. ठीक हो गया. Yes. जो for an adult male you will use a 7.5 ID endotracheal tube, and for an adult female you will use a 6.5 to 7. adult male में अगर large size का मेल है तो 8 तक, इसकी मैक्सिमम जो है वो 8 होती है. Yes. ठीक है, और मिनिमम कितना होता है, सबसे छोटा मिनिमम साइज बच्चों के लिए, न्यूनेट के लिए 2.5. ठीक है, और लार्जेस्ट इज 8. ठीक है, जो बच्चे हैं उनकी जो एंडोट्रेकियल ट्यूब है, और इसमें डिफरेंस इज दैट देयर इज नो कफ इन उनमें, बिकॉज देयर laryngeal inlet is made so. ठीक है, कि वहाँ पे कफ की जरूरत ही नहीं होती. They don't need a cuff. If you are able to just cross the vocal cord, that is good enough. It will not be displaced.
and there will be no more space for any aspiration. Okay? But in case of adult, you need to have a Cuff. cuff because they are of larger size and there is a number of there are spaces around that, okay, from which an aspiration can happen. Okay? So you need to have a cuff here. In case of male, up till 3.5 mm there is no cuff. Okay? 3.5 ID, 2.5, 3, 3.5 no cuff. After 3.5 till 8 there is cuff. ठीक हो गया? अच्छा. What are the indications? That is all. Unconscious patient. Unconscious patient. What are the indications of endotracheal tube? Very good. The patient who has got a GCS of less than 8. Okay? It covers everything. If you are able to say this, it covers everything. Okay? A patient who is under anesthesia has got a GCS less than 8. Okay? A patient with head injury has got a GCS less than 8. A patient on vent has got a GCS less than 8. इतना कुछ बोलने से बजाय just answer by a single answer. ठीक है? GCS less than 8 you need a cuff tube. ठीक है जी? या ये if you are not able to pass this endotracheal, then you will pass. इधर गायब हुए. ठीक है? ठीक है? If you are not able to pass this, then you will have to pass tracheostomy tube. Okay? And what are the specific indications of a tracheostomy tube? The specific indication of a tracheostomy tube are if you have to, you are unable to pass upper airway. ठीक है? इसी वजह से नहीं ना, नहीं तो आपकी अगर आंखें अल्लाह में दिया हाथ दिया तो आप डाल ही दो. ये नहीं जरूरी कि जनाब आपको आती नहीं है डालनी तो पढ़ के जनाब नहीं दिखाएं. ठीक है? जाहिर है अपर एयरवे इज ब्लॉक. ठीक है? आप वहाँ पे नहीं जा सक रहे तो उस सूरत में आपको जो है ना वो ये डालनी पड़ेगी. ठीक है? तो स्पेसिफिक इंडिकेशंस हैं आपके लिए हैं मैंडिबुलर ट्रॉमा, fracture of the mandible. If there is fracture of the mandible, then you are unable to hold your tongue. It is out of your control. Okay? It is out of your control, and whenever you will lie, the tongue will fall back. Okay? So if you are going to give anesthesia to a patient with mandibular trauma, okay, whenever you are able to pass endotracheal, but when you are going to put him in a recovery mode, and you will take him out of anesthesia, bring him out of anesthesia. At that time, he will not be able to hold his tongue, and he will always be having a choking. Okay? So that's why before embarking on operation on anesthesia on mandibular trauma patient, you always do a tracheostomy. Number one. Number two, if you want to have a patient put on ventilator for more than 7 days, you should have a tracheostomy tube because it bypasses the anatomical airways. Anatomical airway और physiological airway के दरमियान डिफरेंस कुछ ना कुछ पता है? Anatomical वो है जहाँ पे आपकी there is no crossover of oxygen. Yes. That is the anatomical. And the physiological is wherever there is crossover of oxygen. ठीक है? So where crossover of oxygen starts from? Physiology. From? Alveoli.
आखिरी alveoli, respiratory alveoli. Yes, sir. ठीक है? So beyond that, it is the anatomical Chemical airway. airway. And after a respiratory alveoli, there is the physiological airway. ठीक है? So you want to bypass the anatomical dead space. Yes, sir. ठीक है? Which is the non-respiratory phase of respiration. ठीक है? You will bypass that and you can have a very good saturation at the alveolar level. ठीक है? Oxygen saturation by putting an endotracheal tube. ठीक है? ऊपर वाला सारा nose, near, ठीक है ना, oral cavity सब कुछ bypass हो जाएगा और ट्रेकिया भी जो है ना वो भी काफी सारा bypass हो जाएगा. ठीक है ना? तो ये आप उसके लिए फिर वो करें. ठीक है? आप secretion directly, you can extract the secretion directly. ठीक है? So it becomes very easy to put a patient on vent with a endotracheal tube. Sorry, with a tracheostomy tube. ठीक है? And you can do a prophylactic tracheostomy. ठीक है? In a patient with burn. ठीक है? If there is burn with a upper airway involvement, होगी तो क्या होगा? Ultimately he will choke because of laryngeal edema. So you put a preemptive tracheostomy tube, preemptively, prophylactically. ठीक है? So that it doesn't happen. ठीक, ये 2-3 पॉइंट्स जो है ना वो याद है. ठीक हो गया? So first indication, wherever you are unable to pass this, you will pass this. This is surgical airway. And cricothyroidotomy tube is actually a separate tube, but we don't have that. यहाँ पे available नहीं है cricothyroidotomy tube. ठीक है? It is the same kind of tube, but it has got no cup and it has got a smaller diameter. ठीक है? And it buys you time up till 45 minutes. ठीक है? So that you can undergo with a proper tracheostomy tube. If you have done a cricothyroidotomy, you will not pass this. You will have to pass this. ठीक है? After cricothyroidotomy. And it will give you only 45 minutes because this is jet insufflation जो है ना वो उससे करते हैं, because that is not a very good ventilatory tube. For ventilation you have to have a inspiration as well as expiration. So you can only give an inspiration, but you cannot expirate from that minor hole. ठीक है? So it will only be a time buying measure, cricothyroidotomy. 45 minutes तक आपको time मिल जाता है, and then you will embark on a tracheostomy tube directly. ठीक हो गया? ये समझ आ गया, इसका पता लग गया. ठीक है? और इसका भी पता लग गया. पास तो हो गया वही तो बता रहा मैं ये तो बता रहा था. ठीक है? This is the handle, this is the blade. You will put the blade ये है, जिस तरफ कर्व है ना. Yes, sir. ठीक है? कर्व आपके ऑपोजिट ही रहना चाहिए, अवे फ्रॉम यू. ठीक है? आपने ट्यूब ऐसे डाल. ठीक है? बस यहाँ पे रखो, ये दबाओ. Yes, sir. शुरू. ठीक है? ओपन करने के लिए यूं किया. Yes, sir. ठीक है? यूं रखा. Yes, sir. Yes. ट्रॉमा को समझ लिया हुआ है. अच्छा जी. तूने भी अब आ जाता है जी आपकी ये. हाँ, इसकी स्टरलाइजेशन और इसकी स्टरलाइजेशन ये रहेगी. ठीक है? All the tubes and drains are sterilized by
या सुई होती हाँ फिर सुई बोला तफसीलात करते नहीं, हर बार नहीं यूज करते, हर बार नहीं यूज इतनी काजी नहीं। हर बार नहीं यूज क्यों करते हैं बेटा? इसी वजह से ना कि वो स्टरलाइज करके ट्रॉमा कोर्स किया बात सुनो, ये जो है ना ये हेलो ये जितनी चीजें हैं, ये जितनी चीजें हैं, ठीक है, ये जितनी चीजें हैं, ये की सारी डिस्पोजेबल आइटम्स हैं, ठीक है, सिवाय इनके जिनमें सुलाखें होती हैं, ठीक है, इन लोगों के अलावा, ठीक है, बाकी जितनी हैं दे आर स्टरलाइज्ड बाय द इथिलीन ऑक्साइड गैस, बिकॉज दिस इज अ इंडस्ट्रियल बेसिस पे तैयार होती हैं, बहुत बड़े बैचेस लगाते हैं, बहुत बड़े कमरे होते हैं, ठीक है, और उनके अंदर जो है ना वो एक साइड से वो गैस उठाते हैं और दूसरी साइड से गैस लेते हैं, ठीक है, और वो जितनी चीज़ें होती हैं वो सारा गैस कौन सी? इथाइलिन ऑक्साइड, दैट इज कैरोटीन गैस है। ये एक अगले का पता कोई नहीं। अच्छा समझ आ गई है? यस सर। ठीक है, स्टरलाइजेशन एक बात है, ये जो आपकी है ना ये these are done by gamma rays because they have got needles and sheath, ठीक है, इस वजह से ये और आपकी सिरिंजेस और वो सारी जितनी है ना वो सारी की सारी gamma rays, ये भी एथिलीन ऑक्साइड गैस से एथिलीन ऑक्साइड गैस, ठीक हो गया? हो गया। ठीक है, यस सर। अच्छा तो स्विचेस और ट्यूब सारी एथिलीन ऑक्साइड गैस और जितनी भी वो है सिरिंजेस वगैरह वो सारी गैमा रेज, ठीक है, सिरिंजेस जो है गैमा रेज क्या है, व्हाट आर दीस? अच्छा, व्हाट इज दिस? सेंट्रल वीनस प्रेशर लाइन, CVP लाइन, सेंट्रल वीनस प्रेशर लाइन, CVP लाइन पढ़िए पहले, आज मैम बता रही थी CVP लाइन, सेंट्रल वीनस प्रेशर लाइन, ठीक है, सेंट्रल वीनस प्रेशर लाइन इज टू calculate the central venous central venous pressure, ठीक है, central venous pressure is basically the pressure of this line जो है ना, इस लाइन की टिप जो है it is kept in superior vena cava, ठीक है, और it shows the pressure in the right atrium, ठीक है, right atrium, which is the pressure against which your veins will pump blood into your heart. That means the venous return जो आपकी आ रही है, the venous return will be against this pressure, ठीक है,
So if this pressure gets bigger, your venous return will reduce. ठीक है, जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा, the right heart failure और right heart hypertension, ठीक है, जिसे हम congestive cardiac failure कहते हैं, ठीक है, this pressure rises, so there is ineffective venous return and the patient collapse. ठीक है, venous return कम होगी तो क्या होगा, effective ejaculation जो है बहुत सारी जो वो है क्या उसे कहते हैं, जो ejection है that will not be मतलब नहीं हो सकेगी, ठीक है, ejection नहीं हो सकेगी, ठीक है ना, वो नहीं होगा, filling नहीं होगी, ejection नहीं होगी, क्या होगा आपका cardiac output definitely, ठीक है ना, ultimately patient collapse, ठीक है. So this is basically to know the central venous pressure, and central venous pressure is 4 to 11 millimeter of mercury in a normal patient. If it is less than 4, that means the patient is hypovolemic. ठीक है, the patient is hypovolemic. ठीक है, and if it is more than 11, that means it is hypervolemic. That means patient is overloaded. Yes. ठीक है, overload में, ठीक हो गया. तो ये आपका है सेंट्रल वीनस प्रेशर मॉनिटरिंग के लिए, ठीक है. जो कॉमनेस्ट साइज है वो क्या है, कहाँ से डाल सकते हैं ये, क्लेविकल सब क्लेवियन रूट में, ठीक है जी, और इंटरनल जुगुलर में और फेमरल, 3 जगहों से आप वहाँ पे जा सकते हैं, ठीक हो गया. 3 जगहों से वहाँ पे जा सकते हैं सेंट्रल वेनस प्रेशर जानने के लिए, ठीक है जी. तो ये 3 जगह आपको बता लीजिए कहाँ कहाँ पे. मोस्ट कॉमन साइट इज द सब क्लेवियन बिकॉज इट इज इजी टू हैंडल. पेशेंट के लिए एक यहाँ पे कुंदना लटकता रहना वो बड़ा, यहाँ पे लगा रहना बड़ा इजी है, बजाय इसके कि आप इंटरनल जुगुलर में गर्दन भी नहीं ला सकता, ठीक है ना, हर वक्त डरा रहता है, ठीक है. तो आप यहाँ से डालते हो, इसकी जो ड्रेसिंग वगैरह वो इजी होती है, सारा इजी होता है, ठीक हो गया. तो दिस इज द, इसको आप 3 जगहों पे डालते हो, ठीक है. इंटरनल जुगुलर वेन होते हैं. अच्छा, उसके बाद आ जाता है कि कॉम्प्लिकेशन. पहले कहा था कि जब भी कोई प्रोसीजर की कॉम्प्लिकेशन बतानी है तो पारा ऑफ बतानी है, पोस्ट ऑफ बतानी है, इमीडिएट और अर्ली, इस तरह में, ठीक है. तो जो इमीडिएट जो आपकी वो है वो क्या है, हेमरेज. और तो यहाँ पे क्या है और क्या होता है, यहाँ पे आर्टरी में जा सकती है, आर्टरी पंक्चर होती है और एम्बोलिज्म और क्या है यहाँ पे चेस्ट में, और क्या है, व्हाट इज देयर इन चेस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, लंग. तो लंग्स का अगर आप पूरा रप्चर करोगे तो क्या होगा, न्यूमोथोरैक्स, ठीक है. तो न्यूमोथोरैक्स, ये 3 चीजें चलेगी. उसके बाद आ जाता है कि जी अब आपकी जो ये बता रहे हैं जनाब इन्फेक्शन, ठीक है, वो हो सकती है यहाँ से सेंट्रल वीनस थ्रोम्बोसिस हो सकता है, ठीक है. और क्या हो सकता है यहाँ से, एयर एम्बोलिज्म हो सकता है, ठीक है. और क्या हो सकता है, जो आप टीपीएन दे रहे हो या जो भी ड्रग दे रहे हो उसकी कॉम्प्लिकेशन आता है, ठीक है. तो ये सारी की सारी जो ट्रीटमेंट की कॉम्प्लिकेशन हैं जो आप करना चाह रहे हो, ठीक है, वो भी इसके साथ. तो ये आपका हो गया ये.
पढ़ लो क्या लिखा है। ethylene oxide. Yes. सर यहाँ भी वहाँ पे ऊपर सर इधर लगा होगा, टेप लगी होगी, वहाँ पे नहीं पढ़ने का मौका मिलेगा। Sterilized by ethylene oxide. sterilized by ethylene oxide. लिखा हुआ है। हम एज अ ड्रेन यूज करते हैं। What is drain? यार वो सक्शन ड्रेन नहीं लेके आया। सर को ठीक हो गया। आगे नो किसके अब इसके दूसरी साइड का क्या सूचन ओए सबक यार थैंक यू सर को थोड़ा सा इधर हो जाना। हुसैन शाफी या मैन तो और नहीं पढ़ाया मास्टर नहीं इसकी नहीं है तुम लोगों को इसकी नहीं मैं अच्छा बेसिक और thoracostomy tube thoracostomy या thoracostomy tube ठीक है। इसको किस चीज के साथ अटैच करोगे? वो नजर आ रही गलती से पकड़ लिए लेकिन हौसला नहीं है। गदो ये है अंडर वाटर सी। यस सर इसके साथ अटैच करो। यस सर इसमें डालोगे पानी ठीक है और ये जो है ये इसके अंदर चली जाएगी ठीक है और यहाँ पे एक वाटर कॉलम बन जाएगा। यहाँ दिखाइए जगह पे वाटर कॉलम बन जाएगा सर इधर भी दिखाइए ठीक है। सर और इधर भी विद सक्शन जो एयर है ठीक है व्हेन यू विल इंस्पिरेट तो क्या होगा एयर विल बी पुश्ड आउटसाइड। मैकेनिज्म पूछा जाता है अंडर चेस्ट ट्यूब का मैकेनिज्म क्या है? व्हेन यू इंस्पिरेट तो जो प्लूरल कैविटी में जो एयर है इट विल बी पुश्ड बाय योर लंग आउटसाइड ठीक है। दैट एयर विल कम आउट ऑफ हेयर बाय बबल्स ठीक है। यस सर अब जब आप वो करोगे क्या उसे कहते हैं एक्सपिरेट करोगे तो क्या होगा वहाँ पे अब एयर वापस नहीं आनी चाहिए। ये रास्ता है ये ट्यूब है ये रास्ता है तो यहाँ से भी एयर अंदर जानी चाहिए ना बट एयर विल नॉट गो इन बिकॉज योर वाटर विल प्रिवेंट द एयर गोइंग कॉलम के अंदर वाटर ऊपर चढ़ जाएगा। देखा है कभी? जाके देख लेना यार हो सकता है तुम्हें पेशेंट ही दे दें वहाँ पे जिसका कॉलम मूव कर रहा हो कॉलम मूव कर रहा होगा सांस लेगा कॉलम नीचे जाएगा ठीक है बबल्स बाहर निकलेंगे अंदर क्या उसे कहते हैं बाहर फेंकेगा सॉरी ये कॉलम है वो ऊपर की तरफ ठीक हो गया। यस सर समझ आ गई है? यस सर ठीक है तो दिस इज द चेस्ट ड्रेन। ये पूरे का पूरा जब बनेगा कनेक्टेड होगा तो इट इज अ चेस्ट ड्रेन ठीक है। दिस इज अंडर वाटर स्किन एंड दिस इज व्हाट चेस्ट दोनों मिलके जब ये कनेक्ट हो जाएंगे देन इट विल बी चेस्ट ड्रेन ड्रेन
डालना कहाँ से है यार, तुम लोगों का कोई हाल भी। सर 6 और 6 क्या कहते हैं यार, ट्रायंगल ऑफ सेफ्टी। यस सर। ठीक है, फिफ्थ कोई हार्ड एंड फास्ट वहाँ पे लिखा नहीं होता, यहाँ पे डालो, यहाँ पे डालो, यहाँ पे डालो। ठीक है, ट्रायंगल ऑफ सेफ्टी, ट्रायंगल ऑफ सेफ्टी इज कहाँ से लेके कहाँ तक यार, यही तो बात। ठीक है, तो ट्रायंगल ऑफ सेफ्टी यहाँ से सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस से लेके सिक्स इंटरकोस्टल स्पेस तक। ठीक है, सेकंड से सिक्स तक और एंटीरियर एक्सिलरी लाइन में। ठीक है, बिकॉज देयर इज नो इम्पोर्टेंट एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर ओवर हियर, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ट्रायंगल ऑफ सेफ्टी। यहाँ पे आपने वो सेकंड से, जरूरी नहीं है आप डालते फोर्थ फिफ्थ में ही हो, सेकंड में कोई नहीं डालता, फिफ्थ में कोई नहीं डालता। ठीक है, लेकिन ये मार्किंग रखी हुई है कि सेकंड से फिफ्थ के दरमियान कहीं भी नहीं डालता। ठीक है, थर्ड में डाल दो, फोर्थ में डाल दो, फिफ्थ में डाल दो। ठीक हो गया? तुम लोगों को देख के तो मक्खी बच्चों को डरना चाहिए। अच्छा, ठीक है, अब तीसरी चीज जो इस बहुत इम्पोर्टेंट है, ये सर लास्ट, दिस इज व्हाट कैथेटर। इसका नाम कौन बताएगा? सर उधर लिखा हुआ है लेटेक्स। This is called self-retaining Foley's catheter. Self-retaining Retaining Foley's catheter. Because there are other catheters which are not self-retaining. Yes sir. It is self-retaining because it has got a balloon over it. It has got a balloon over it. इधर कहाँ पे Inside. नजर नहीं आ रहा। अच्छा, ठीक है, only when we will inject water from here. ठीक है, तो यहाँ पे नजर आएगा, नजर आएगा। ये हल्का सा ये यहाँ, ठीक है, 20 cc तक जा सकता है। यस सर। कि एक ही सर सवाल पूछने गए, व्हाट इज द इंडिकेशन? द इंडिकेशन इज टू मॉनिटर द यूरिन आउटपुट, नथिंग एल्स, मॉनिटर द यूरिन आउटपुट। ठीक है, इसकी तो तुम लोगों को पता ही होगी सर। मुझे उसे को ट्रॉली उठा लो। खत्म हो गया, मैं खत्म हो गया। ये सर्जिकल फीचर्स हैं। सर इनके कलर दिखा रहे हैं। ये क्या है? सर हमें कलरिंग क्रोमिक कैटगट नाम और कलर याद रखो। दिस इज क्रोमिक कैटगट। दिस इज मेड अप ऑफ gelatin. It is not cat gut actually. It was cat gut when it was discovered. ये हमारा अनसिल्क ब्रेडेड सिल्क क्रोमिक कैट गट ब्राउन कलर पॉलीप्रोपाइलीन मोनोफिलामेंट स्टमक ट्यूब चेस्ट ड्रेन बोतल हाइड्रो वाटर वही ना, इसे बोलते हैं हाइड्रो वाटर सील, अंडर वाटर सील सॉरी। पॉलीग्लैक्टिन वाइक्रल। This is braided suture. इधर तो This is synthetic, braided, absorbable. ये उसी तरह बना होता है, उसी तरह। यस सर। ठीक है। Chromic catgut is an absorbable, natural, ठीक है, natural, absorbable and this is what? This is proline. Yes sir. Blue color. Proline monofilament. Proline.
ग्रेइश दिस इज नॉन एब्जॉर्बेबल। सुन लो, ये मेरा आवाज बैठ गई, सुन लो। नॉन एब्जॉर्बेबल मोनोफिलामेंट, यस सर नॉन एब्जॉर्बेबल सिंथेटिक मोनोफिलामेंट, यूनिसिल्क, यूनिसिल्क, थोड़ा नीचे नेचुरल braided suture, यस सर and it is non-absorbable, non-absorbable, ठीक है। तो मैं क्या सर ये ड्रिप कट है यार, क्या होगा? ये एंटी ट्यूब है। क्या बोलते हैं तो पीछे तो हो गया गॉर्टिस कैथेटर वैस्कुलर कैथेटर है। वेस्कुलर कैथेटर कलर, हर कलर के रखे ग्रैनुला होते हैं। कलर यस सर ठीक है, 3-4 कलर के ब्रैनले जो है ना वो देख लेने। येलो कलर इज फॉर 24 नंबर ब्रैनला, यस सर ठीक है, एंड 18 नंबर इज ग्रीन 18 नंबर ब्रैनला, ठीक है। अगर आपने एक बच्चे को ब्रैनला डालना है तो कौन सा डालोगे? 24। और अगर आप इमरजेंसी में डाल रहे हो तो 14 या 18 या 18 कितने? बस